Hello, everybody. Welcome to Vani Academy. So, today I'm Palak Agnihotri and I will teach you this NCRT course. So, before coming to our course, I would like to tell you that Vani ma'am has started her foundation course on Indian polity on Unacademy. So, if you all want to take the plus subscription, you can put her referral code that is Vani Mehra to avail 10% discount as well as you will get her personal mentorship throughout your preparation. Hence, if you want more information, you can see the description box given below. Now let us start. So before coming to our topic, I would like to give you some basic ideas about that. That is, the intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements. You can see that what leads to the bhakti and Sufi movement that has evolved since 8th century. Okay, the idea of supreme god emerged. Supreme god means ki some of the other religion based on Puranic text or something, they used to now new kind of bhakti was developed. They used to worship now Shiv, Vishnu, and goddess, different types of incarnations of Vishnu. Okay, so new kind of bhakti developed in South India. That is the arrival of the religious movements by Alvars and Nayanars. Okay, philosophy and bhakti also. The term of philosophy and bhakti came. We will reach to the philosophy of bhakti. And during the time period of 8th to 17th century, saints of Maharashtra such as Janeshwara, Jananeshwar or Gyaneshwar, Namdev, Eknath, Tukaram, women, Sukubai, and untouchables, they were also involved in the religious movements and worships of God. So, okay, different religious groups emerged: Nathpanthi, Siddhas, Yogis, and Islam also came to India at that particular time period. Okay, Sufi movement was there, which was led by Sufis who were the Muslim mystics, and Islam propagated strict monotheism. नॉर्थ इंडिया में कबीर, गुरु नानक जी ऐसे लोग जो हैं महान हमारे बीच वो आए और उन्होंने रिजेक्ट किए जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है वो. तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है अवधि लैंग्वेज में. सो नाउ वी विल रीच टू आवर टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर भक्ति सूफी ट्रेडिशन. New textual sources available in the mid first millennium CE included contribution attributed to past saints, which were often set to music, were compiled by disciples or devotees generally after the death of poet saint. They expressed by themselves orally in regional languages used by ordinary people. Hagiographies and biographies, according to historians, hagiographies and biographies of saints were written by their followers, and they may not be literally accurate, but they tells about some or the other thing. But they allow glimpse into the ways in which devotees breathe. So now they tell about the life of the particular men and women who was associated with that particular movement or anything else. The mosaic of religious belief and practices. So here we can see that the most striking feature of this particular phase is that we can see the increasing visibility of the wide range of goddesses and goddesses in the different forms such as Shiv and Vishnu and many gods, and we can see the sculpture about them. We can see the text in which there is a description of these gods and goddesses also. So now we will come to a topic, the integration of cults. Historians tried to understand development and suggested that there were at least two processes. They suggested two processes. One was the disseminating Brahmanical ideas exemplified by the composition of Puranic text in simple Sanskrit verse. Explicitity means to be accessible to women and Shudras. Mostly these two groups, women and Shudras, were excluded from the Vedic learning. Here the Brahmins accepting and reworking the belief and practices of these and other social categories. In fact, many beliefs were shaped through a continuous dialogues between what sociologists have described as a great and Sanskrit Puranic tradition and little tradition through the land. So you can means frame these particular religious sects and the religious movements in this particular time period. So one of the striking feature is that you can see here the Jagannath and her means बीच में उनकी बहन है किसकी कृष्ण और बलराम की. ही इज़ बलराम, ही इज़ कृष्णा एंड ये शी इज़ सुभद्रा. सो इनकी रथ यात्रा भी निकलती है जो कि अभी फ़िलहाल करंट अफेयर है. ये
इसको नहीं निकाला गया है इस बार रथ यात्रा को ड्यू टू कोरोना वायरस क्राइसिस। सो हम ये पढ़ सकते हैं कि पुरी में इनका मंदिर है, जगन्नाथ बोला जाता है। 12th सेंचुरी में ये मेजर डेटी थे उस समय के, और इन्हें बोला जाता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जगत के नाथ यानी जगन्नाथ। सो इस समय हम देखते हैं कि जो ये डीटी है इनका क्या होता था कि लकड़ी की इमेज बनती है इनकी, और इन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि विष्णु के ही अवतार हैं। इनकी लकड़ी की जो इमेज बनती है वो एक ट्राइबल लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट बनाते हैं, और विष्णु वॉज विजुअलाइज्ड, विष्णु को भी बहुत अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग उनके अवतार में पूरे भारत में रिकॉग्नाइज़ किया गया। कई लोग किसी नाम से पूछते थे, कई लोग किसी मुहूर्त और किसी नाम से पूछते थे, लेकिन थे तो वो विष्णु के ही इनकारनेशंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फीमेल जो गॉडेस थी उनके साथ भी यही होता था, और उनको भी पौराणिक फ्रेमवर्क में एक प्रिंसिपल मेल डेटी की वाइफ बताया जाता था, जैसे कि विष्णु की वाइफ हो गई लक्ष्मी, ठीक है, और पार्वती जो हो गई वो शिव की वाइफ हो गई। ये सब चीज़ें उस पर दिखाई जाती थी। कुछ जो डिफरेंस थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो ये थे कि जो ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस वर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप दैट इज़ क्लासिफाइड एज टैंट्रिक। जो टैंट्रिक वर्शिप होती थी वो गॉडेस से एसोसिएट करती थी। तो ये जो वर्शिप होती थी, प्रैक्टिस होती थी, ये वाइड स्प्रेड थी कुछ सेवरल पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के, और ये एक ये ओपन भी थी वुमेन और मैन के लिए और प्रैक्टिशनर्स के लिए, और ये इग्नोर करती थी कास्ट और क्लास के डिफरेंसेस रिचुअलिस्टिक जो कॉन्टेक्स्ट में दिए हुए हैं। और मैनी ऑफ जो आइडियाज़ थे ये इन्फ्लुएंस थे शैविज्म से और बुद्धिज़्म से भी। तो स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थर्न पार्ट में और साउथ पार्ट पे सब कॉन्टिनेंट के। तो ऑल ऑफ दीज समवॉट डाइवर्जेंट एंड इवन डिस्पैरेट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वुड कम टू बी क्लासिफाइड एज हिंदू ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट मिलेनियम। इसी को फिर हिंदू बोला गया, ये वो, ठीक है। तो अब इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वैदिक से पौराणिक कैसे डिफरेंस है। तो पुराण के टेक्स्ट के हिसाब से हम गॉडेस और विष्णु और शिव और इनकी पूजा करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी वेदास अगर हम देखें तो उसमें वैदिक मंत्र जो थे वो प्रेज करने में, और जो गॉड्स थे उसके वो अग्नि, इंद्र और सोम थे मेजर, ठीक है। इसमें ये चीज़ें दी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो कुछ चीज़ों में ये भी दिया है कि ऑल्सो डिवोटीज ऑफन टेंडेड टू प्रोजेक्ट देयर चूजन डीटी इधर विष्णु और शिव एज सुप्रीम। उनको सुप्रीम मानते थे कुछ डीटीज जो थे वो, डिवोटीज जो थे वो, और उनके रिलेशन जो थे अदर ट्रेडिशन से सच एज बुद्धिज्म और जैनिज्म वर ऑल्सो फ्रॉट विद टेंशन इफ नॉट ओपन कॉन्फ्लिक्ट। टक्कर तो होती है रिलीजन में। The tradition of devotion or bhakti need to be located within this context. Devotional worship had a long history of almost 1000 years before the period we are considering. Okay, तो अब सिंगिंग चैंटिंग होने लगी डिवोशनल कंपोजिशन की दूसरे पार्ट्स में, और ये मोड माने लगे, वर्शिप के अलग अलग मोड्स होने लगे, कर्मकांड परफॉर्म किए जाने लगे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी धीरे धीरे करके, और कई बार ये चीज़ों को आडंबर भी कई जगह बोला गया है, ठीक है। अब पोएम्स एंड प्रेयर्स की बात करते हैं। तो जो सूफ़ी जो पोएट सेंट्स होते थे, सॉरी सूफ़ी बोल दिया मैंने, वो इमर्ज किए एक अच्छे लीडर के रूप में। क्यों लीडर हैं? क्योंकि उनके आसपास जो कोई संत महात्मा होते हैं तो उनके आसपास हमेशा एक कम्युनिटी रहती है ना भक्तों की, इसी तरह इनके भी आसपास हमेशा एक डेवलप्ड रहती थी पूरी कम्युनिटी डिवोटीज़ की। जो ब्राह्मण होते थे उनकी तो कोई हालत में वो नहीं आया, वो हमेशा ने इंटरमीडिएटरी का ही काम किए हैं गॉड और भक्तों के बीच में, रिचुअल्स परफॉर्म करके और स्पिरिचुअल चीज़ें परफॉर्म करके उन्होंने अपने आप को इंटरमीडिएटरी बनाए रखा गॉड और भक्तों के बीच में। जो ट्रेडिशनल थे वो एक्नॉलेज करते थे वुमेन और लोअर कास्ट को कि वो इनएलिजिबल हैं लिबरेशन के लिए, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। और ट्रेडिशन जो थे वो रिमार्क करते थे डाइवर्सिटी। ट्रेडिशन ऑफ भक्ति वॉज रिमार्केबल डाइवर्सिटी, ठीक है। भक्ति का ट्रेडिशन जो था वो एक डाइवर्सिटी था, अलग अलग रूप में और अलग जगह पे होता था। हिस्टोरियंस ने भक्ति को दो रूप में क्लासीफाई किया है, पहली है सगुण और दूसरी है निर्गुण। जो सगुण भक्ति है it is called as with attributes and nirgun is called without attributes. So which is with attributes, it focus on the worship of specific deities such as Shiva, Vishnu and goddesses, and जो निर्गुण भक्ति है उसमें without attributes है, तो उसमें कोई वर्शिप जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड में होती है, ओके होती है। कुछ हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि जो अलवर्स और न्यानार्स होते थे उन्होंने जो मूवमेंट प्रोटेस्ट से शुरू किए कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट और डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण के अगेंस्ट, कि ब्राह्मण की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा, और उन्होंने कई बार अटेम्प्ट किया रिफॉर्म करने के लिए सिस्टम को, ठीक है। और कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि ये कन्फर्म है कि जो भक्त थे वो हेल करते थे डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से। अब वो ऑब्वियसली बात है,
भक्त सिर्फ कोई एक रिलीजन या एक बैकग्राउंड का नहीं होता, हर सेक्ट में, हर बैकग्राउंड में भक्त होते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मानते नहीं हैं, नास्तिक होते हैं। तो ब्राह्मण से लेके आर्टिसन तक, कल्टिवेटर्स और अनटचेबल भी इवन भक्त होते थे। तो कुछ मेजर एंथोलॉजीज़ हैं जो कंपोजिशन है अलवर्स की, जैसे नलाईराज एंड दिव्य प्रबंधनम। तो ये जो थे डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेद, इनको तमिल वेद बताया गया। इनमें फैक्ट है कि जो टेक्स्ट है वो सिग्निफिकेंट है, जैसे कि फोर्थ वेदास। तो अगर मेरे से कोई टर्मिनोलॉजी बोलने में दिक्कत हो जाती है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि आई एम नॉट मीन्स परफेक्ट एंड आई हैड नॉट हर्ड अबाउट दीज थिंग्स, सो मे बी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए। जो लिखा है मैं उसे प्रोनाउंसिएशन की पूरी कोशिश करूँगी। विमेन डिवोटीज़ की बात आती है तो ये स्ट्राइकिंग फीचर था ट्रेडिशन का कि वुमेन की डिवोटीज़ की भी प्रेजेंस होने लगी तो गॉडेस भक्ति वगैरह में। तो कंपोजिशन ऑफ अंडल, अ वुमेन अलवर, वाइडली संग। अंडल सॉ हरसेल्फ एज अ बिलव्ड ऑफ विष्णु। अंडल जो थे वो अपने आप को विष्णु का बिलव्ड मानती थी। जो दूसरी वुमेन थी शिव डिवोटी, तो वो कराइकल अमैयार्स, जो अडॉप्ट की द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्थेटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। हर कंपोजिशन प्रिजर्व विद इन द नायनार्स ट्रेडिशन। ये वुमेन की दो सेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि एक जो बिलोंग करती थी अलवर और एक नायनार को, तो उनका कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या लिखा है और कैसे उनका बचाया गया है वो चीज़ें। तो दीज वुमेन रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशन बट दे नॉट जॉइंट एन अल्टरनेटिव ऑर्डर और बिकम नन। देयर एग्जिस्टेंस एंड कंपोजिशन पोज द चैलेंज टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स। अब रिलेशन विद द स्टेट, रिलेशन कैसे थे स्टेट के साथ, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं सरदारी के बारे में, तमिल रीजन के बारे में, कैसे सरदारी चलती थी, चोलास, चेरास, पंड्याज एक्सेट्रा। तो इसके बारे में दिया है कि सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम से CE से ये एविडेंस, देयर इज एविडेंस फॉर स्टेट इंक्लूडिंग दोज ऑफ पल्लव एंड पंड्यास, while Buddhism and Jainism had been prevalent in this region for several centuries, drawing support from merchant and artisans communities, and religious tradition received occasional royal patronage. भक्ति हिम्स वगैरह ये सब जो है इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। Historians are exempted to explain the hostility by suggesting that it was due to competition between members of other religion tradition of a royal patronage. What is evident is that powerful Chola ruler जो थे वो ब्राह्मणिकल भक्ति को ट्रेडिशन को सपोर्ट करते थे और उनको लैंड ग्रांट भी करते थे। हमने लैंड ग्रांट के बारे में पढ़ा है ताकि वहाँ पे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हो सके विष्णु और शिव के। हम ये देख सकते हैं कि जो राजा होते थे अपनी पावर जताने के लिए अक्सर जो टेम्पल वगैरह है, बड़े बड़े एफिशिएंट टेम्पल्स भी बनवाते थे, तो उन्हीं में से एक थे ये चोल, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैग्निफिशेंट शिव टेम्पल्स थे जैसे कि चिदम्बरम तंजवार में, तंजवार एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट किए गए अंडर द पैटर्नेज ऑफ चोल रूलर, हम ये देख सकते हैं, ठीक है। स्पेक्टेकुलर रिप्रेजेंटेशन हुआ इनमें शिव का ब्रोंज स्कल्पचर के रूप में प्रोड्यूस किया गया उनको, ठीक है। तो ये नायनार्स आर्टिस्ट का मतलब दिखाया गया है इसमें क्योंकि वो शिव की पूजा करते थे। अब यहाँ नटराज की मूर्ति दिखाई है, शिव को दिखाया गया। इनके 4 हाथ है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है UPSC का कि नटराज के कितने हैंड्स होते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। इमेजेस पे ध्यान भी देना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो बोथ नायनार्स एंड अलवर्स वर रिवर्ड बाय द वेलाला पीजेंट्स। नॉट सरप्राइजिंगली रूलर ट्राई टू विन देयर सपोर्ट एज वेल, ठीक है। तो चोल किंग होते थे ऑफन एग्जाम टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ओन पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग। मैंने बताया था ना कि अपना स्टेटस दिखाने के लिए और ये सब करने के लिए वो लोग बहुत बड़े बड़े मैग्निफिशेंट टेम्पल बनवाते थे, ठीक है। ये लोग अब ये भी इंट्रोड्यूस करते थे सिंगिंग तमिल शैव हेम्स की टेम्पल्स में अंडर रॉयल पैटर्नेज, टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू अ टेक्स्ट। अब इन्हीं हिम्स को शिव जो थी उनको एक टेक्स्ट में मतलब वो कलेक्ट किया गया। क्या नाम था उसका? तेवरम। तो फर्दर इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस फ्रॉम अराउंड 945 सजेस्ट दैट द चोल रूलर Paranthavan had consecrated metal images of Apar, Sambandar and Sundarar in शिव टेम्पल। ये चीज़ें जो ये टर्मिनोलॉजी है मे भी ये प्रीलिम्स में आ सके। तो मेरे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया बाकियों की तरह, जैसे लोग पढ़ाते हुए कह देते हैं कि आपको कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल NCERT मत छूइए। आप बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। आप पहले इसमें पढ़िए, मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप एक बार पढ़िएगा भी खुद से NCERT, तब आपको समझ में आएगा। द वीरशक ट्रेडिशन एंड इन कर्नाटका, अब वीरशैवा
मेरे से बोले में गलती हो गई होगी तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो 12th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ द मूवमेंट इन कर्नाटका। एक मूवमेंट हुआ 12th सेंचुरी में कर्नाटका में, जो कि किसके द्वारा लेड किया गया, ब्राह्मण जिसका नाम था बसावन, जो मिनिस्टर थे किसके कोर्ट में, करचुली किंग, कालाचुरी किंग रूलर के, ठीक है। तो हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वीरा शैवाज, हीरोज ऑफ शिव, और लिंगायत भी बोलते थे इनको, वियरर्स ऑफ लिंग, ठीक है, वियर करते थे वो लोग लिंग को। तो लिंगायत जो थे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, इस रीजन की। तो वो वर्शिप करते थे शिव की मैनिफेस्टेशन एज अ लिंग, एंड मैन यूजुअली वियर स्मॉल लिंग इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। कैसे वो लोग पहनते थे लिंगों को, ठीक है। दोज हु आर रिवर्ड इंक्लूडेड द जनगम एंड वैंडरिंग मॉन्क्स। लिंगायत बिलीव दैट डेथ, लिंगायत ये बिलीव करते थे कि अगर किसी डिवोटी की डेथ हो गई है तो वो शिव से उनका मिलन हो गया और वो कभी इस दुनिया में लौट के नहीं आएंगे। इसका मतलब वो रीबर्थ पे बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। और इसलिए वो फ्यूनरी साइट राइट्स जो है, क्रीमेशन वगैरह की फॉर्म नहीं करते थे, जबकि वो लोग सिर्फ बरी कर देते थे उन लोगों को। उनका ये मानना था कि मरने के बाद लोग जो हैं वो शिव से यूनाइट हो जाएंगे जाके। जो लिंगायत होते थे उन्होंने चैलेंज किया कास्ट के आइडिया को, ठीक है। द पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स इन द ब्राह्मण, जो पॉल्यूशन चल रहा था कुछ ग्रुप्स में ब्राह्मण के, उन्होंने और क्वेश्चन भी किया रिबर्थ की थ्योरी पे, जैसे मैंने बताया था ना वो लोग मानते नहीं थे, ठीक है। वो उन्होंने एनकरेज किया प्रैक्टिस डिसअप्रूव्ड बाय धर्मशास्त्र सच एज पोस्ट प्रिबर्टी मैरिजेस एंड री मैरिज ऑफ द विडोज। उन्होंने ये चीज़ें एनकरेज की, क्या, री मैरिज ऑफ द विडोज एंड पोस्ट प्रिबर्टी मैरिजेस, कि पहले ना हो शादी, ज़्यादा बच्चे में चाइल्ड मैरिज ना हो, पोस्ट प्रीबर्टी हो, प्रीबर्टी के बाद हो, री मैरिज भी हो सकती है विडोज़ की। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीर शैवाज ट्रेडिशन इज़ डिराइव फ्रॉम, हमें कहाँ से ये वीर शैवा की ट्रेडिशन की स्टडी कहाँ से मिलती है, लिटरेरी सेइंग्स, वचन जिसको कहते हैं, कन्नड़ में कंपोज है वुमेन और मैन के द्वारा, बाय वुमेन एंड मैन हु जॉइन द मूवमेंट, ठीक है। अब रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया, अब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते थे उन्होंने बताया कि कुछ राजपूत जो स्टेट्स थे इमर्ज हुए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अच्छी पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखी थी, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, किस में, क्योंकि वो रिचुअल राइट्स परफॉर्म करते थे, सेक्युलर चीज़ें परफॉर्म करते थे, ठीक है। कुछ दूसरे रिलीजियस रूलर्स आए, जैसे कि नाथ पंथीज, जोगीज, सिद्धार्थ, जिसके बारे में हमने पढ़ा है अभी पीछे, ठीक है। वो उनको अभी ग्राउंड्स मिलने लगा, ठीक है। कुछ अदर थे जो कहाँ से आए, आर्टिजन्स ग्रुप से बिलोंग करते थे, वीवर्स ग्रुप से बिलोंग करते थे। जो कुछ और होते थे वो क्वेश्चन करते थे वेदों की अथॉरिटी पे और अपने आप को एक्सप्रेस करते थे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, ताकि लोग उनको समझ सकें, अपने आप को एक्सप्रेस करते थे वो लोग। तो दे डिड नॉट विन द सपोर्ट ऑफ, उनको रूलिंग एलिट्स का सपोर्ट नहीं मिला। नए एलिमेंट्स आए, जैसे कि तर्क्स जो आए, है ना, इंडिया पे, उनका डेवलपमेंट हुआ। दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 13th सेंचुरी में, ठीक है। ये अंडरमाइन करता है पावर ऑफ मैनी राजपूत स्टेट्स को, ठीक है। एंड ब्राह्मण जो थे वो एसोसिएट करते थे इन सब किंगडम से, राजपूत किंगडम्स वगैरह से, ठीक है। ये मार्क करता है चेंजेस को इन द रीम्स ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस। इसका सिग्निफिकेंट पार्ट डेवलपमेंट हुआ सूफीज़ के आने के बाद, ठीक है। सूफी मूवमेंट अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन, जस्ट एज द रीजन विद इन द सब कॉन्टिनेंट वर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, so to contact with land beyond the areas mountains had existed for millennia। जो अरब मर्चेंट्स थे उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है, और जो बाउंड्रीज है सब कॉन्टिनेंट्स की, क्या कैसे आइसोलेट किससे होती थी क्या नहीं, उसके बारे में दिया है। अरब मर्चेंट्स ने फ्रिक्वेंटेड पोर्ट्स अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट में पोर्ट्स बनने लगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पे अरब मर्चेंट का आना जाना बनना शुरू हो गया था। फर्स्ट मिलेनियम CE, वाइल सेंट्रल एशियन पीपल सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है। फ्रॉम द 7th सेंचुरी, अब देखो इस्लाम का जो एडवेंट है वो कब से माना जाता है, 7th सेंचुरी से माना जाता है, ठीक है। ये रीजन जो है पार्ट बन गए इस्लामिक वर्ल्ड का। अब फेथ जो था रूलर्स का और सब्जेक्ट का, तो 1711 में 711 में अरब जनरल जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने कॉन्क्वर किया, जीत लिया किसको, सिंध रीजन को। पहले सिंध रीजन भी इंडिया में आता था, अब वो पाकिस्तान में आता है। 13th सेंचुरी में तर्क्स आए, अफगान्स आए, वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है पीछे। फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत जो है डेक्कन में भी हो गया और कुछ और पार्ट्स में भी हो गया सब कॉन्टिनेंट के। 16th सेंचुरी मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, बाबर ने एस्टेब्लिश किया। अब इस्लाम जो था वो एक्नॉलेज होने लगा एक रिलीजन
जो था एक्नॉलेज रिलीजन ऑफ रूलर इन द सेवरल एरियाज। कई एरियाज में रूलर्स का जो धर्म है वो इस्लाम भी वो होने लगा एक्नॉलेज। मुस्लिम रूलर वर गाइडेड बाय उलमास। उलमास जो होते थे वो गाइड करते थे मुस्लिम रूलर को। हु हैड एंश्योर्ड, जिनको ये इंश्योर करना पड़ता था कि क्या वो रूल कर रहे हैं शरिया के अकॉर्डिंग कि नहीं। शरिया क्या होता है? एक लॉ होता है जो मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे ये प्रोनाउंसिएशन में कोई भी मुस्लिम टर्म अगर मुझसे प्रोनाउंस करने में गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैंने इन चीज़ों के बारे में नहीं सुना है तो मे भी गलती हो जाए मुझसे, इसलिए। इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट दैट द कैटेगरी ऑफ जिम्मी मीनिंग प्रोटेक्टेड। जिम्मी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड। इन द कैटेगरी ऑफ जिम्मी डेवलप्ड फॉर द पीपल हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स सच एज Jews and Christians and lived under the Muslim rulership. They paid a tax called jizyas and gained the rights to be protected by Muslim. अब वो मुस्लिम को टैक्स पे करते थे, दूसरी कम्युनिटी जो है ये सब, और उनसे वो राइट लेते थे क्या कि टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम। मुस्लिम उनको प्रोटेक्ट करते थे, इसीलिए इसी पे टैक्स देने के बाद। तो इंडिया में ये जो स्टेटस था एक्सटेंडेड टू हिंदूज एंड मुगल्स केम टू रिगार्डेड देमसेल्व एज एम्परर्स, नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट ऑफ ऑल पीपल। वो एम्परर खुद को बता लिए, सिर्फ मुस्लिम के नहीं, सारे लोगों के, ठीक है। इन इफेक्ट रूलर्स ऑफन अडॉप्टेड अ फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसीज टुवर्ड देयर सब्जेक्ट। फ्लेक्सिबल और फेयर पॉलिसीज़ वो लोग अडॉप्ट करते थे अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। और सेवरल जो रूलर्स थे उन्होंने लैंड एडोमेंट दी थी, ग्रांट किए थे टैक्स एग्जम्पशन हिंदूज़ को, जैन्स को, जोरास्ट्रियंस को, क्रिश्चियंस को, ज्यूइश को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, और रिस्पेक्ट भी करते थे वो। द रूलर्स प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। पॉपुलर प्रैक्टिसेस क्या होती थी? तो जो भी इस्लाम अडॉप्ट करता था उनके 5 पिलर्स होते थे, प्रिंसिपल होते थे जो उस पूरे धर्म के, ठीक है। ऑफ द फेथ दैट देयर इज़ वन गॉड। क्या? पहला कि उनके एक ही गॉड है, अल्लाह जिनको कहते हैं, एंड प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो उनके मैसेंजर हैं जिनको शहादा कहते हैं। ऑफरिंग 5 प्रेयर्स अ फाइव टाइम्स अ डे, 5 बार दिन में प्रेयर। हम भी जानते हैं, सुने हैं, नमाज होती है ना 5 बार दिन में, जिसको सलात भी कहते हैं, सलात भी कहते हैं। अगर मेरे से बोलने में प्लीज़ अगर कोई गलती हो रही हो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो गिविंग अल्म देना, ज़कात जिनको कहते हैं, ज़ाकत जो भी है। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, स्वान, एंड परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज मक्का, हज जिसको कहते हैं। ये 5 जो है मुस्लिम रिलीजन या इस्लाम के पिलर होते हैं। तो ये दीज यूनिवर्सल फीचर ऑफन ओवरलेड विद डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी भी होती है प्रैक्टिस में इनके, जो कि डिराइव फ्रॉम सेक्टारियन एफिलिएशन। सुन्नीज और शियाज 2 तरह की मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती हैं। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल मिलियस। फॉर एग्जाम्पल द खोजाज, अ ब्रांच ऑफ द इस्लामीज, अ सियासत डेवलप्ड अ न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने न्यू मोड डेवलप किया कम्युनिकेशन का, क्या करके? डिसेमिनेट करके आइडियाज़ को जो डिराइव होते थे कुरान से और इंडिजीनियस लिटरेरी जॉनर्स से। तो ये जो थे इंक्लूड करते थे जिनान, जिसको कहते हैं संस्कृत में ज्ञान, नॉलेज। डिवोशनल पोएम्स इन पंजाबीज, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी एंड गुजराती, संग इन स्पेशल राग्स ड्यूरिंग डेली प्रेयर मीटिंग्स। एल्सवेयर देख सकते हैं हम कि मुस्लिम कम्युनिटीज़, मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे, अरब्स थे, वो जो सेटल हुए मालाबार कोस्ट में, मालाबार कोस्ट का केरला वाला रीजन, उन्होंने अडॉप्ट किया एक लोकल लैंग्वेज को, मलयालम को उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है। उन्होंने लोकल कस्टम्स को भी सच एज मैट्रिलिनी एंड मैट्री लोकल रेसिडेंस इज द प्रैक्टिस वेयर वुमेन आफ्टर मैरिज रिमेन इन देयर नेटल होम with their children and the husbands may come to stay with them. The complex blend of universal faith with local tradition is perhaps best exemplified in the architecture of Muslim mosque. अभी देख सकते हैं शिखर के शेप में दिया हुआ है मॉस्क भी पहले का। कुछ आर्किटेक्चर फॉर्म जो थे मॉस्क के वो यूनिवर्सल थे, जैसे कि ओरिएंटेशन उनका मक्का के टुवर्ड्स, ठीक है। एविडेंट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ मिहरब, प्रेयर निशे, एंड मिनबर, पल्पिट। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी होगी, कभी हो सकता है कि MCQ के फॉर्म में आ जाती हैं। हाउएवर देयर आर सेवरल फीचर्स दैट शोज वेरिएशन सच एज रूफ्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ रूफ में कभी कभी डिफरेंसेस हो जाते थे। अब नेम्स फॉर द कम्युनिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हिस्टोरियंस होते थे, जो संस्कृत पढ़ते थे,
संस्कृत टेक्स्ट को, इंस्क्रिप्शन को 8th और 14th सेंचुरी में। उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि मुसलमान और मुस्लिम जैसा कोई टर्म था ही नहीं, कभी ये टर्म जो है वो यूज़ ही नहीं हुआ। उन्होंने इंस्क्रिप्शन और संस्कृतिक टेक्स्ट पढ़ के ये बताया। बल्कि जो पीपल थे वो आइडेंटिफाई करते थे लोगों को उनके उस जगह से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। जैसे कि कोई टर्किश रूलर है तो उसको तुरुष्का कहते थे, तजिकिस्तान से कोई आया तो उसे तजिका कहते थे, पर्शिया से कोई आया तो उसे पारशिका कहते थे। मीन्स मुस्लिम या मुसलमान कोई धर्म के रूप में उनको कैटेगराइज नहीं करते थे लोग। पहले के लोग क्या करते थे, उन्हें उनके रीजन के हिसाब से कैटेगराइज करते थे कि वो इस रीजन से आए तो वो ये हैं। कुछ मिलच्छास भी होते थे, वो क्या होते थे, माइग्रेंट कम्युनिटी होती थी, और दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी एंड स्पोक लैंग्वेजेस दैट वर नॉट derived फ्रॉम द संस्कृतिक टेक्स्ट. So for today this much is okay, and we will come with our next part. So thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Vani Academy. We are here to empower, involve and encourage you. Thank you and have a nice day.